Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। We have a lot of work to do today because last time जो सेशन हुआ था उसमें पॉइंट्स इतने ज़्यादा थे कि मुझे एक तो ये कि वो मैंने एक दफ़ा जमा तो कर लिए सारे, उसको जमा करने में भी काफ़ी टाइम लग गया, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स थे। एंड सेकेंडली आई कैटेगराइज देम सो दैट आपके लिए थोड़ा सा स्लाइटली आसान हो जाए उसको याद रखना। मैं आगाज़ कर देता हूँ जी यहाँ से, ताकि आपके रिकॉर्ड पे आ जाए, एंड देन वील मूव फॉरवर्ड। आज का हमारा टॉपिक जो है वो तो ज़ाहिर है कि लैंग्वेज लर्निंग और कम्युनिकेशन है। जस्ट टू गेट अ रिकैप ऑफ व्हाट वी डिड लास्ट टाइम। हमने लास्ट टाइम जो किया था दैट वाज एडवांस्ड कॉग्निटिव एबिलिटीज़। इसको मैंने जो कंपाइल किया है, इसकी जो पहली हेडिंग बनती है वो है इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ठीक है, इसमें जो लोगों ने पॉइंट्स बताए थे, अब जाहिर है कि ये कैटेगोरिकली हमने कैटेगराइज तो कर दिए, लेकिन अंदर कोई मैंने इसको चेंज नहीं किया बहुत ज़्यादा। कॉन्टिन्यूअली एक्सप्लोर एंड लर्न, रिमेन perpetually curious, become astute observers and learn from observing the creatures around them, develop ideas and theories to explain unknown phenomena, pursue and explore their ideas, develop discernment and more profound understanding, continually reflect and seek revisions in points of view। आपको अगर किसी चीज़ को समझने में मुश्किल हो तो उसको सिर्फ नोट कर दीजिएगा, मुझे फिर बाद में पूछ लीजिएगा। Learn from one's own experiences and those of others, share thoughts with others and benefit from their insights, take knowledge-based action, share knowledge with others, reflect on and correct mistakes। दूसरा जो हेड बना था वो था पर्सनल डेवलपमेंट एंड सेल्फ मास्टरी। इसमें आया था डेवलप एंड एनहांस देयर पोटेंशियल। Number two was become the best version of themselves, live with hope even in adverse conditions, understand and regulate internal processes, improve behaviors, be deliberate in actions, replace bad habits with good ones, practice self accountability, spend time on important things and avoid wasting time on unimportant ones, avoid cluttering the mind with useless thoughts, control their instincts and desires and purposefully direct their lives, perpetually improve their thoughts, outlook, and perspective, value these potentials, use them, and be thankful for them, and act responsibly। इसमें कुछ repetitions भी हैं, लगती भी हैं, लेकिन वो मैंने I just noted them all down so that nobody, क्योंकि subtle differences भी हो सकते हैं जी। Ethical living and moral responsibility is the third heading। इसमें हमने लिखा था, लोगों ने जो बताया था वो था live principle centered responsible lives, take care of prejudices, face challenges with courage, be responsible and sensible in using their abilities, keep the possible consequences of actions in mind, balance the short-term and long-term consequences of actions, develop alternative courses of action to reach goals, be good decision makers, create a long-term vision for themselves, recognize that while we cannot benefit God, that is the Creator, we are expected to use our intellect and understanding to benefit His creation through responsible action। I found this to be a very interesting point. Social harmony and contribution. Value differences with others, celebrate differences and create harmony, derive cooperative synergies, learn from those who think differently and evolve as a species, be helpful to others and create a congenial environment as a society, have a positive influence on others, improve their education, health, economics, and society, be contributors rather than just beneficiaries, be aware of the impact of their actions on other people and species। और फिर था जी स्टूवर्डशिप एंड एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टूवर्डशिप का मतलब होता है कि अपने आप को अमीन समझना, जो कुछ आपके पास है उसमें अपने आप को इंटरेस्टेड समझना। लर्न हाउ टू बेनिफिट हिमसेल्फ,
themselves and other creatures, understand, care for, and responsibly manage the natural world and other creatures, help all creatures flourish, create goodness in the environment. और फिर था जी moral intelligence and theological insights. ये recognize their unseen creator, use rational faculties to discern and understand the creator, deeply comprehend the guidance from God, be part of the next steps in the intellectual and moral evolution of the human species as a whole. Or finally, there was problem solving and practical wisdom. Find solutions to problems, utilize these potentials to make life easier for themselves and others. यहाँ तक पिछला हमारा सेशन था जी। आज आपने कोशिश ये करनी है जी, इसको थोड़ा-सा ऑर्गेनाइज़ करना है। पॉइंट को डिस्कस करने मैं आपके सामने ले आता हूँ ये जो हम व्हाटएवर वी हैव अंडर दिस हेडिंग, इसको मैं सामने ले आता हूँ। आपने पॉइंट के रेफरेंस से बताना है कि मैं इसके हवाले से क्या समझी हूँ या समझाऊँ। इफ यू फील दैट आपने एक जनरल किया हुआ है तो उस वो एक्चुअली बहुत सारा ऐसे हो जाता है कि जो उसको फिर डिस्कस करना उस वक़्त मुश्किल हो जाता है कि आप किसके हवाले से बात कर रहे हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। लर्निंग लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन पर जब मैंने अपनी रिफ्लेक्शंस लिखी, पहले एक जुमला उसके बाद फिर मैं स्पेसिफिकली पहले पॉइंट पर आऊँगी। वो जुमला यूँ था कि मुझे इसका बहुत गहरा ताल्लुक जो है हमारी सेल्फ अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस और कॉग्निटिव एबिलिटी से नज़र आया कि वो सही होंगी तो फिर हम इस पोटेंशियल को इस्तेमाल कर सकेंगे। तो वही एक्सपेक्टेशंस क्रिएटर की क्रिएशन से हैं। तो अब जो पहला पॉइंट था कि लर्निंग लैंग्वेज और कम्युनिकेशन के अंदर जो एक्सप्रेशन ऑफ थॉट एंड इमोशन के पोटेंशियल हमें क्रिएटर ने दिया है। तो क्रिएटर की यही एक्सपेक्टेशन है कि हम अपनी थॉट से भी आगाह रहें, अपनी थॉट्स की और इमोशंस की भी ज़िम्मेदारी कबूल करें और ज़िम्मेदारी से सोचें और ज़िम्मेदारी से अपने जज़्बात को रेगुलेट करें। नाइस, नाइस। इसमें मैं अपनी ऑब्ज़र्वेशंस भी मैंने ऐड की इधर-उधर जब मैंने देखा। खुद को सबसे पहले मैंने देखा कि जब मैंने ज़िम्मेदारी कबूल की अपनी थॉट्स की, तो फिर मुझे अपनी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस का पता चला। फिर मुझे पता चला कि मेरे इमोशंस और थॉट्स को अगर मैं सही करूँगी, तो क्रिएटर यही चाहता है कि अच्छे से अपने इमोशंस को समझो और फिर उनको अच्छे से एक्सप्रेस करो। क्योंकि अब इसमें भी वही असल में ये है कि क्रिएटर की एक्सपेक्टेशन जो पहले में आपने नटशेल किया था और अभी जो आपने उसका समराइज़ किया है, तो ये उससे बहुत ज़्यादा रिलेटेड है क्योंकि क्रिएटर यही चाहता है कि हम इस पोटेंशियल को इस्तेमाल करके तो दूसरों को और खुद को फ़ायदा पहुँचाएँ और अच्छे अच्छे काम करें। अ, मतलब इसको तो मैंने बहुत ज़्यादा मुतल्लिक़ पाया कि जब फिर इसको इस्तेमाल करके मुख्तलिफ शायर और मुसन्निफ़ीन ने लिखा, तो हालिक की एक्सपेक्टेशन पर जो पूरा उतरे उनमें से वो ही थे जिन्होंने अच्छी इक़दार को प्रमोट किया। प्यार, मोहब्बत, कंपैशन अ, और बताया सबने यही इक़दार बताई कि अच्छा सोचना, गुस्से को काबू पाना, आजिज़ रहना, मोस्टली जो लिटरेचर है, जो कि अच्छा लिटरेचर है। तो इसका मतलब है कि हालाँकि कि इनने जो फ़ितरत में रखी चीज़, तो उसका यही दिल है कि वो उसको रिकॉग्नाइज़ करे। वो ये एक्सपेक्ट करता है कि वो जो इंसान है, वो उसको रिकॉग्नाइज़ करे, इस पोटेंशियल को, एक्सप्रेशन ऑफ थॉट एंड इमोशन को और फिर इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस्तेमाल करे। थैंक यू। श्योर, थैंक यू जी। ये फातिमा आप अनम्यूट कर लीजिए। इसमें तो मुझे तो 9 पॉइंट्स थे इसमें, मैंने उनसे रिलेट किया वन बाय वन। सो सबसे पहले मैंने लिखा है कि क्रिएट ब्यूटी इन देयर वर्ल्ड थ्रू पोएट्री एंड लिटरेचर एंड आल्सो इन रिलेशनशिप्स बाय एक्सप्रेसिंग आवर इमोशंस। एंड जो दूसरा पॉइंट है ये आप फिर से एक बार पढ़िएगा, मैं दूसरा दूसरा हिस्सा मिस कर गया जी। आई एम सॉरी। create beauty in this world through poetry and literature and also in relationships by expressing our emotions. राइट।
like expressing our emotions appropriately. ठीक And then social bonds and relationships में है to expects to stay connected with our loved ones and friends. Then in the third point, knowledge sharing means study this world and also express and share that knowledge with fellow human beings. Knowledge sharing enables the creation of a knowledge base for current and future generations. बिल्कुल ठीक Cultural transmission में I feel expectation है to stay connected with our ancestors, our past, and take it along into our future. ठीक Then metacognition and self-reflection में I feel God expects us to reflect and share our reflections with an expert so that we can get expert guidance and expert advice on our issues and whatever we are struggling with. Okay, 6 1 problem solving and innovation expects us to solve the problems of this world to make it a better place for ourselves and others. Then 7th is building shared worldviews. Expects us to embrace and celebrate our diversity in thought, in preferences, and in language itself. Complex collaboration expects us to progress and make advancements in this world as much as we can. Also expects us to work as a team, which cannot be possible without communicating राइट through language. ठीक And finally, in the imagination and symbolic representation, I think God expects us to understand and express our understanding of the phenomena which cannot be seen through our eyes. For example, इसमें God's existence itself आ जाती है and other imaginary phenomena. ठीक ये जो है ना यहाँ पर इमेजिनेशन ये वो नहीं है जैसे अभी खलील से बात हो रही थी वो अलग आना है ठीक है यहाँ पर इमेजिनेशन ये है कि when you are communicating with me I can actually ये वो वाली इमेजिनेशन है जिससे एम्पैथी पैदा हो सकती है आई कैन एक्चुअली पुट माई सेल्फ देयर ठीक है जी मैं ये समझ पा सकता हूँ मैं जिस वक्त आप मेरे से बात कर रही होती हैं तो मैं असल में अपने ज़हन में वो सीन क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ कि जो हुआ होगा ये वो वाली इमेजिनेशन है सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द अदर्स व्यू मोर क्लियरली और जो हम बात कर रहे हैं वो असल में है ही सारी सिंबॉलिक ठीक है ना ये जब मैं कह रहा हूँ सारी तो इस सारी के वर्ड में अगर सीन अलिफ रे ये लिखा जाए तो इसमें होलनेस का कोई तसव्वुर नहीं है लेकिन हमने उसको होलनेस के लिए रख लिया है और ये अब हमारे दरमियान कॉमन हो गया है सिंबल समझ आ गई बात Okay. यानी ये वो So चीज़ है basically इसमें the imagination जिसके थ्रू आप दूसरे की फीलिंग्स और थॉट्स अंडरस्टैंड करते हो राइट जिसके थ्रू आप या इंसानों से कोई अगर रिलेटेड आपको कोई सीन आपको कोई नरेट कर रहा है तो वो आप माइंड में साथ साथ आपका इमेजिन होता जाता है बन सकता है ठीक है ना अच्छा इसी तरह से इसका एक और जो फ़ायदा होगा वो ये होगा कि आप लिटरेचर की प्रोडक्शन में ये बड़ा काम देगा लैंग्वेज में जब आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं आइडियाज़ तो उसको आप स्टोरी टेलिंग बना सकते हैं ठीक है ना यस राइट जी सही सही थैंक यू ये शबाना अंसारी आप अनम्यूट कर लीजिए अस्सलामुअलैकुम सर वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी सर इसमें मैं लिखा है कि सबसे मुमताज़ करने वाली चीज़ इंसान को नुत्क की सलाहियत है जो खुदा ने खुद भी कलाम के ज़रिए इंसान से रब्ता किया है पिछली किताबों और फिर कुरान के ज़रिए भी खुदा चाहता है कि हम आला कलाम को पहचानें सुने इसके मुताबिक खुद को संवारें अपने बोलने सुनने और समझने की सलाहियतों को इस्तेमाल में लाएं एक बड़े मकसद के लिए जिसमें शुक्रगुजारी भी हो और खुदा की परस्तिश भी हो दूसरा पॉइंट था इसमें कि ख्यालात की मुंतकली और शेयरिंग डीप इमोशंस थॉट आइडियाज स्टोरी टेलिंग और
पोएट्स और राइटर्स, ये जो आपका पॉइंट था, उसमें ये है कि खुदा चाहता है कि हम ज़बान के ज़रिए एक दूसरे के साथ जुड़े, गहरे जज़्बात के ज़रिए ताल्लुकात को मज़बूत करें, मोहब्बत के साथ, एम्पैथी के साथ और सच्चाई की बुनियाद पर बुलंद हो, ना कि खुद को बर्बाद करें। खुदा ने खुद भी अपने कलाम जो इसमें है ना कि स्टोरी टेलिंग, तो खुदा ने खुद भी अपने कलाम के में कौमों की कहानियाँ सुनाकर ही इंज़ार और तबशीर का काम किया है, और खुदा यही चाहता है कि हम उससे इबरत हासिल करें। और और दूसरा ये कि कौमी, समाजी और मज़हबी विरसा जो है, वो भी तवातुर से मुंतकिल होता है, और ये वो भी हमारी यही ज़बान की शायरी, नज़म, नसर, ये सारी चीज़ें उसमें, चाहे सकाफ़ती विरसा हो, चाहे मज़हबी विरसा हो। हम्म। और खुदा ये चाहता है कि हम गलत नज़रियात का प्रचार करके इंसान को भटकाएँ नहीं, बल्कि सही नज़रियात को जो है वो अपनी ज़बान से और अपने पोएट्री और अपनी नसर से बयान करें। जैसे अम, अ, कुछ इस तरह के अशार होते हैं जो आम तौर पे हम लोगों में, जैसे वो एक शेर नहीं है, जैसे काफ़िर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो तेग भी लड़ता है सिपाही। तो इस तरह के अशार का हाल हमने इसको सैयद अहमद शहीद से लेकर हमास के फ़लस्तीन पर हमले तक हमने ये इसकी के नताइज हम भुगत रहे हैं। लेकिन हम इसको दोबारा से नहीं देखते और दोबारा से सोचते नहीं हैं इसको। तो हमें रीथिंक करना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। फिर ज़बान के ज़रिए इंसानों से खुदा हमसे चाहता है कि हम अखलाकी तौर पर अक्ल और सोच और समझ के साथ बातचीत या गुफ्तगू करें, जिसमें अमन की तरोीज हो और ज़िम्मेदारी के साथ ज़बान का इस्तेमाल हो। और इस ज़बान की ताकत जो है वो जलसे जुलूस, सियासत में और कौमों के बनने और टूटने में इसका बहुत बड़ा किरदार होता है। तो खुदा नहीं चाहता कि हम मॉब डिस्ट्रैक्शन करें, जैसे कि हमारे माशरे में हो रहा होता है, जिसमें इंसानों को कत्ल किया जाए। खुदा ये नहीं चाहता कि ऐसी बोली बोली जाए कि जिससे ये नताइज पैदा हों। फिर अगला पॉइंट था जिसमें आपने कहा था इनोवेशंस, ग्रुप्स, बॉन्ड्स, आइडियाज़। खुदा हमसे चाहता है हम कि गुफ्तगू के ज़रिए चैलेंजेस का मुकाबला करें, यानी डायलॉग के ज़रिए, और एक दूसरे के साथ ताउन के साथ इल्म को फैलाएं और अगली अगली नस्लों तक ले जाएं। और ज़बान ही के ज़रिए हम इख्तिलाफ़ात को बढ़ा भी सकते हैं, तासुब और फ़िरका परस्ती, और इसमें शायरी और उसी में मज़मून लिखकर नफ़रत को भी हवा दे सकते हैं। लेकिन खुदा ये नहीं चाहता। खुदा चाहता है कि इंसान जीतने के लिए नहीं, बल्कि अमन के लिए और हक़ को पाने के लिए डायलॉग करे। इसके ज़रिए से खुदा चाहता है कि इंसान जो है वो दुरुस्त प्लानिंग करे, काम भी करे, और इख्तिलाफ़ात में भी रिस्पेक्ट और सब्र के साथ खुद को एक्सप्रेस करे। वो वाली बात कि लेट अस एग्री टू डिसएग्री। खुदा हमसे ये चाहता है कि हम टेंशन को बढ़ाएँ नहीं, बल्कि कम करें। वो चाहता है चाहे वो 2 मुल्कों के दरमियान हो, चाहे वो 2 भाइयों के दरमियान हो, चाहे वो 2 खानदानों के दरमियान हो। ऐसे अल्फाज़ इस्तेमाल करें जो मुत्तहिद करें, ना कि तक़सीम करें। ऐसे अल्फाज़ इस्तेमाल करें जो ज़मीर को जगाएँ, ना कि अना को। इनकिसारी और सख म सख़ी दिल के साथ, माने हमें इनकिसारी हो, डाउन टू अर्थ हो। फिर जो मेटा कम्युनिकेशन, सेल्फ रिफ्लेक्शन और पर्सनल ग्रोथ के बारे में जो आपने पॉइंट दिया था, उसमें खुदा हमसे चाहता है कि हम ना सिर्फ बात करें, बल्कि सोच कर बात करें कि क्या है, क्यों है और किस लिए है। और अपना लहजा, अपनी नीयत, अपने इरादे, असरात सब पर नज़र रखें। क्योंकि खुदा हमसे ये भी चाहता है कि हम अपनी ज़बान के साथ-साथ अपने दिल को भी साफ कर रखें। जिसका ज़िक्र सर बस वो बिलीफ के साथ तो नहीं, लेकिन फिर भी वो आ ही जाता है कि जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा, लव कुंता गलीजुल क़ल्बि लनफ़ज़्ज़ु मिन हवली, फजन कि फजन अगर गलीज़ुल कल्ब। हाँ, गलीजुल क़ल्ब, तो ये वाली बात। और ना सिर्फ बोलें बल्कि सुने भी। वो जो कुरान की आयत है, लव कुन्ना नस्मउ व नाक़िलुन मा कुन्ना मिन असहाबिस सईर, अगर हम सुनते तो, मतलब सुनने की भी इतनी अहमियत है बोलने के साथ-साथ। और क्रिटिकल थिंकिंग में खुदा चाहता है कि मालूमात नहीं, बल्कि विज़डम, हिकमत हासिल करें। खुदा हमसे चाहता है कि हम नई इजादात, प्लानिंग्स और आला वर्जन इख्तियार करें। बेहतर मुस्तकबिल के लिए हम तसव्वुर करें, ख्वाब देखें और इसको अमल में लाएं। दुनिया को भी जन्नत बनाएं। खुदा ये चाहता है कि दुनिया को भी सिर्फ बोलें तो मकसद को पेश नज़र रखकर बात करें। अपने शोर से या पोल्यूशन ना फैलाएं, जैसे गधे की आवाज़ से जो पोल्यूशन फैलता है।
और गलत नज़रियात या कल्ट ना बने, रंग व नस्ल, ज़ात या तासुब के ज़रिए इंसानों को ना बाँटें। खुदा हमसे चाहता है कि हम बेआवाज़ों की आवाज़ बनें जो ये आप माशरे का सारी चीज़ें जो बता रही हैं, इसमें आपने गौर करना है कि ये जो है ना, जो मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि जी, हमारी जो कॉन्शियंस है, वो आकर इन सबको गाइड करेगी। ठीक है? जी, अभी जी। जितनी भी चीज़ें हैं, आप थोड़ी देर के लिए इनको अलग करके पोटेंशियल निकालने की कोशिश करें। यानी सर इसके वो तो अंदर खुद ही वो खुद जो आ जाता है कॉन्शियस, जैसे आपने कहा था ना विल पावर और कॉन्शियस तो साथ-साथ चल रहे राइट, होते हैं। राइट। जी, वो जो चीज़ है, उसी को हमने थोड़ा-सा अलग करने की कोशिश करनी है। यानी इसमें अच्छे और बुरे का अभी हिसाब-किताब कॉन्शियस से आके करना है। ठीक है? ठीक है। यानी कोशिश ये करनी है कि ये डिटरमिन करने की कोशिश करें कि ये पोटेंशियल दोनों लिहाज से असल में पोटेंशियल क्या है? ठीक है ना? यानी क्रिएटर ने ये दे दिया, मिसाल के तौर पर ये दे दिया कि आप अपनी एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स एंड इमोशंस करें। ये जो एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स एंड इमोशंस हैं, ये इसको थोड़ा-सा न्यूट्रल रख के करके देखें क्या बनता है। इसके नतीजे में क्या होगा? इसके नतीजे में ताल्लुकात पर असरअंदाज होंगे हम। ठीक है? यानी वी विल डेवलप रिलेशनशिप्स, हम कनेक्शंस पैदा करेंगे। देखिए, कनेक्शंस जो हैं वो दुश्मनी के भी हो सकते हैं, मोहब्बत के भी हो सकते हैं। जी, जी। इस तरह से न्यूट्रल रखने की कोशिश करनी है। यानी ये जो पोटेंशियल्स हैं, इनको कोशिश करना है कि न्यूट्रल रखते हुए करें। इनको जिसको कहते हैं ना, नॉर्मेटिव ना बनाएं। नॉर्मेटिव नहीं है ये पोटेंशियल्स। असल में नॉर्मेटिव इनको बनाती है आके, थ्योरेटिकली स्पीकिंग ज़ाहिर है कि ये कोई ऐसे नहीं कि मेरे एक खाने में ये मेरे पास एडवांस्ड कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं और ये लैंग्वेज की लर्निंग की फैसिलिटी है और ये मेरी कॉन्शियंस है। नहीं, है तो सब इकट्ठे। हमने उनको कैटेगराइज़ कर दिया है। असल में हम जब इसको कैटेगराइज़ेशन को देखना चाहते हैं कि ये पोटेंशियल कैसे यूज़ कर, इसका क्या अल्लाह ताला, यानी एक खालिक ने ये दिया मुझे कि मैं ये कर सकता हूँ, लैंग्वेज की लैंग्वेज सीख सकता हूँ और अपनी कम्युनिकेशन कर सकता हूँ। सो व्हाट डज ही वांट फ्रॉम मी? दिस इज द आइडिया। ठीक है? अब आके कॉन्शियंस ने, थियोरेटिकली कॉन्शियंस ने उसको ठीक डायरेक्शन देनी है कि जो तुम जी नफरतें सर। भी फैला सकते थे अपने जज्बात के इजहार से या ताल्लुक अपने थॉट्स खराब रख के, उनको ठीक रखना है। अगर ठीक नहीं रखोगे तो मारे जाओगे, तुम्हारे ऊपर असर पड़ेगा ये। दूसरा जो जी सर। आपका एक पॉइंट है, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि दुनिया को जन्नत बना दें। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ये सर बन तो सकती है ना अगर कुछ लोग भी मतलब आधे लोग भी सही अपनी ज़िम्मेदारी अदा करें तो फिर भी हो ही जाता है ऐसा। जैसे उस राइट, ज़ूपासम के ज़माने में भी अच्छा माशरा था और ये जैसे वेस्ट में मतलब निस्बत हमारे माशरे की निस्बत बेहतरीन माशरा जो जिस एक तरह से जन्नत की समझें कि एक तारुफ के तौर पे, नॉट सही, कंप्लीटली जन्नत राइट, वो तो राइट। ज़ाहिर नहीं हो सकता। यानी इंडिविजुअल लेवल पे तो शायद बिल्कुल भी नहीं हो सकता, लेकिन जनरली बिल्कुल, एक जी। आप मैप की हद तक एक मैप क्रिएट कर सकते हैं उसका शायद। दैट्स एन जी सर। इंटरेस्टिंग सर पॉइंट, और एक वेरी एक इंटरेस्टिंग। पॉइंट था कि आपने कि वो कॉम्प्लेक्स और कोलैबोरेशन और उसमें मैंने लिखा है कि खुदा चाहता है कि हम ऊपर से नीचे तक हर फर्द की अहमियत को जानें कि हर इंसान जो है वो एक पुर्जा है, वेरी दूसरों की इंपॉर्टेंट। अहमियत को माने और ज़बान से भी उनके शुक्रगुज़ार हों क्योंकि मुख्तलिफ़ सलाहियतों वाले मुख्तलिफ़ इंसान एक दूसरे के मददगार हैं, जो एक दूसरे की ज़रूरत है, उनकी बात सुनें, उनके मशवरे लें, इख्तिलाफ़ बिल्कुल को दुश्मनी ना बनाएँ, इज्तिमाई भलाई को मुक़द्दम रखें, उम्मीद की नई राहें खोलें। और फिर वो इमेजिनेशन मैंने भी इसमें पता नहीं शायद गलत ही है शायद, तख़य्युल उस दुनिया की तरफ ले जाता है जो इंसान की आइडियल है, जो इंसान की ख्वाबों में है और उसकी सोचों में। तो इंसान को जो है वो इटर्नल अपनी इमेजिनेशन एक अच्छी दुनिया का एक ख्याल जो इंसान के दिलो दिमाग में है, तो हम्म, उसमें ये है कि फन इल्म और फन के रास्ते से गौर व फिक्र और निशानियों के ज़रिए से जो है इंसान या इन्फ्रेंस के ज़रिए उन चीज़ों तक पहुँच जाए जो नहीं नज़र आ रही, वो भी हम्म, इसमें। और बाकी ये कि हम ऐसे लिटरेचर और ऐसे लतीफ़े और चीज़ें ना बनाएँ जो दूसरों का मज़ाक उड़ाने वाली और उनको कमतर जानने वाली हों, जो रंग, नस्ल, मज़हब का मज़ाक उड़ाने वाली हो।
और आखिरी बात जो सर मैंने लिखी है कि ज़बान में वैसे तो हड्डी नहीं होती, लेकिन इसके गलत इस्तेमाल से दूसरों की हड्डी तोड़वा सकती है। एक ये गाली, एक नफ़रत का अपनी का भी बड़ा चांस होता है। एक नफ़रत का बोल और ये एक बुरा फ़िक्रा कसना जो है वो पल भर में एक ज़िंदा इंसान को लाश में बदल देता है। इसलिए अच्छा बोल, मीठा बोल और माफ़ करना दुश्मन को दोस्त में बदल सकता है। खैर जी बस बात। ये लिखा है। थैंक यू। थैंक यू जी। दो चीजें मोहित साहब आई वुड लाइक टू इटरेट हियर, जिससे मुझे जाती तौर पे ये जो सेशंस हैं आपके, इससे सबसे ज्यादा फायदा होता है। तो मैं इसलिए शेयर करना चाह रहा हूँ कि अगर कोई और इस पर रिफ्लेक्ट करना चाहे या इसी अप्रोच को लेना चाहे तो शायद उनको भी फायदा ज्यादा हासिल हो। स्पेशली स्पीकिंग अबाउट ये जो 7 यूनिकली ह्यूमन पोटेंशियल्स एंड देन वी ट्राइंग टू गो बैक टू द क्रिएटर विद दैट। इसमें जो 2 पॉइंट्स हैं, पहला पॉइंट ये कि जैसे आप कह रहे थे ना कि हम इसको न्यूट्रल होकर देखने की कोशिश करें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है मेरे ख्याल। अल्लाह ताला से रिश्ता ऐसा है, और जिस तरह हम ब्रॉटअप होते हैं, रिश्ता ऐसा रहता है कि हम फ्रेश पर्सपेक्टिव नहीं ला पाते आसानी से अल्लाह ताला के मामले में। और अब लेकिन ये जिस तरह आपने एक्सरसाइज अभी तक कराई है, इट इज ट्रूली ब्रिलियंट मेरे ख्याल में। मैं एक्चुअली अपनी बेगम से भी जिक्र कर रहा था कुछ दिन पहले कि दिस हैज रियली हेल्प्ड मी लुक एट अल्लाह ताला फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव बट इन अ वेरी फ्रेश वे। तो एक तो ये मेरी एडवाइस होगी सबको कि शायद ये आपके लिए भी हो। हर एक का अपना सफर है, लेकिन शायद ये अप्रोच आपको भी फायदेमंद हो। तो वो जो फेथ का लेंस है उसको उससे ना देखें। थोड़ी देर के लिए भूलने की कोशिश करें कि हम मैं अल्लाह ताला ने पैदा किया है। ये अज्यूम करें कोई भी क्रिएटर है जिसने भी बनाया है, ये खूबी हमारे अंदर डाली है, या राइट खूबी भी नहीं, ये एबिलिटी राइट हमारे अंदर डाली है, तो वो चाहता क्या होगा। इससे जो राइट फ्रेश पर्सपेक्टिव जहन में आ रहा है आई थिंक, वरना तो वही वही बातें रीइंफोर्स होती रह चली जाती। बिल्कुल। दूसरा ये जो मैं कोशिश कर रहा हूँ, सक्सेसफुल नहीं लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी मैं आपसे पॉइंट शेयर करूँ या सेशन में शेयर करूँ, वो अपने इंडिविजुअल हवाले से और बड़ा स्पेसिफिक हो। क्योंकि वरना जो बातें हैं वो अभी तक बड़ी वैल्यूबल बातें की हैं सबने, और किसी भी एक चीज से अभी तक जिसने भी शेयर किया कोई डिसएग्रीमेंट नहीं हो सकता, लेकिन वो जरा जेनेरिक हो जाती हैं बातें। वो बातें जेनेरिक भी हो जाती हैं, ब्रॉड भी हो जाती हैं, और आउटवर्ड्स हो जाती हैं। दुनिया में तो बड़ी राइट आग लगी हुई, तो वहां तो खराबियां राइट देखने को मिलेंगी तो बेतहाशा है। लेकिन जब बिल्कुल इनवर्ड्स हम देखते हैं और बड़े स्पेसिफिक इंडिविजुअली मुझे क्या फर्क पड़ा, वो हो सकता है कि सबके लिए बहुत वैल्यूबल ना हो, लेकिन जिसके लिए भी होगा उसके लिए फिर रियली वैल्यूबल होगा वो, जब आप एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो जस्ट 2 पॉइंट्स आई वांटेड टू रेज। इट माइट हेल्प एवरीवन, इट माइट नॉट। तो इस डिस्क्लेमर के साथ कि जाती तौर पे मुझे इस अप्रोच से फायदा हो रहा है, शायद आपको भी हो जाए। इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच जी जज़ाकल्लाह। रोजबेन आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मैं आपने जो बयान फरमाया और अली भाई ने कहा वही कि फ़ेथ के लेंस को हटा के बड़ा मुश्किल हो रहा है इसको सोचना। जी जी और दूसरा ये कि ये ऐसा लगता है कि हमारे अंदर की आवाज़ है कि ऐसा होना चाहिए, दुनिया को जन्नत होना चाहिए, तो फिर वही चीज़ें हमारे आती हैं और वही लिखते हैं सही कि बुराई सही। नहीं होनी चाहिए। अच्छा यानी ख़ालिक तक नहीं पहुँच पा रहे अभी तक हम। हम्म अपने अंदर ही को आवाज़ ही की वो रहनुमाई या कुछ भी है निशानदेही कर रहे हैं। ठीक ठीक। देखिए मैंने भी इसी तरह के पॉइंट्स ही लिखे हैं। पहला तो यही है कि जब ये सलाहियत जिस ख़ालिक ने भी दी है, तो फिर हर जगह उसका चर्चा होना चाहिए ना। उसी की तारीफ़ करनी चाहिए, उसी का शुक्र अदा करना चाहिए और हर एक से और हर जगह उसका चर्चा करना चाहिए। वाह। फिर है सोशल बॉन्ड एंड रिलेशनशिप में कि मुझे ख़ानदान या माशरे में मसाइल को हल करने वाला बनना चाहिए, ना कि बिगाड़ करने वाला। फिर सेल्फ रिफ्लेक्शन यानी ये समझ-बूझ की सलाहियत से मिलता-जुलता है ये जो लास्ट हमने किया था। हैं कि सेल्फ बीच में आ रिफ्लेक्शन जाते में हैं। जी 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 दैट्स राइट। कि अपने कल को अपने आज को अपने कल से बेहतर बनाएँ। फिर नॉलेज शेयरिंग में कि जो भी स्किल मुझे मिली है उसको दूसरों को फ़ायदा पहुँचाने वाले बने। कि फिर नहीं, ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स मेटा सॉल्यूशन कम्युनिकेशन है ना जी, इसको फिर से समझ लें। ये मेरे ख्याल में थोड़ा सा मिस हो रहा है। मेटा कम्युनिकेशन का मतलब ये है
कि जो मैं अपने आप से गुफ्तगू कर रहा होता हूँ, वो भी असल में लैंग्वेज ही के उसमें होती है। यानी व्हेन आई टॉक टू माई सेल्फ, व्हेन आई थिंक अबाउट समथिंग, यानी जब मैं अपने आप से बात कर रहा होता हूँ कि उसने ये कहा या उस, तो ये भी लैंग्वेज ही के लिबादे में हो रही होती है। ठीक है जी, यानी ठीक है। ये मतलब है इसका। और जब हम यानी हम सेल्फ जो रिफ्लेक्ट कर सोचते रहे हैं वो होते भी हैं, ज़बान से जी, जो सेल्फ रिफ्लेक्शन है वो भी असल में जुबान के लिबादे ही में हो रही है कि जी। ये इस तरह हुआ था, मैंने इस वजह से इस तरह किया था, समथिंग। वो ये है जो बताना पेश नज़र है कि दिस इज हाउ वी यूज लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, कि हम ये यूजेस हैं इसकी। फिर ठीक है। मिलके टीम वर्क के साथ काम करें, दूसरे के आइडियाज़ को सुनें और समझने वाले बनें। हम्म तो इस तरह के पॉइंट्स ही बन रहे हैं। तो यही है कि खालिक तक तो नहीं अभी तक पहुँचा जा रहा। ये मैं जो चाह रही हूँ, ऐसा होना चाहिए, वही मैं लिख पा रही हूँ। तो इसके लिए कोई टिप दीजिए ना, इससे आगे कैसे बढ़ूँ? नहीं नहीं, आपने अभी सिर्फ ये कि ये एक्सपेक्टेशन है खालिक की। खालिक तक हम जो पहुंचेंगे, वो हमने जो पहले बात की, अपने ऊपर गौर करेंगे, जो खालिक ये चीज़ें एक्सपेक्ट करता है, उससे ये डिराइव होती है बात कि फिर अक्लन जब हम रैशनली बात कर रहे हैं, तो व्हाट इज इट दैट टेक्स अस टू गॉड। जो क्रिएशन हमने देखी, पॉइंट नंबर 1 जो था, ये कायनात कैसी है, इसके अंदर मखलूक़ात कैसी हैं, इसके अंदर मखलूक़ात का रोल क्या है, ये हमने देखा। हम कैसे हैं, ये हमने देखा। इससे पता चला कि हमारे से एक्सपेक्टेशंस क्या है। जो हमारे पोटेंशियल हैं वो ये बताते हैं कि एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। यानी जिसने दी हैं वो क्या समझता है कि हम क्या करें, यानी अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, दूसरों पर असरअंदाज होंगे, दूसरों से सीखेंगे, ये सब कुछ होगा ना। अच्छा, फिर उसी लैंग्वेज ही के दायरे में, मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि ये अगर पोटेंशियल दिए तो अपनी अपनी सोच के ऊपर भी पैरा बिठाएंगे, ये सब कुछ होगा। यानी चाहे मैं अच्छा मकसद है मेरा, ये बुरा मकसद है, मैं उसके ऊपर पैरा बिठा सकता हूँ। आई कैन फोकस, टोटली फोकस कि मैंने क्या काम करना है, ये कर सकता हूँ। ये है जो मेरे अंदर एबिलिटी है। तो ये मेरा खालिक मेरे से ये चीज़ें चाहता है। अब ये खालिक कैसा है, इस एक्सपेक्टेशन से डिराइव करें। ठीक है। नंबर 3 चीज़ जो है वो ये है कि फिर उसके बाद कुछ मसाइल हैं दुनिया में, तो हम खालिक तक जो पहुंचने का मामला है वो ये इस एक्सपेक्टेशंस के अगला मामला है। यानी इन्फ्रेंस क्या है, ये एबिलिटीज हैं, इससे इन्फ्रेंस ये कर रहे हैं, हम रैशनली इन्फर कर रहे हैं कि अगर ये एबिलिटीज अल्लाह ताला खुदा ने दी हैं, खालिक ने दी हैं, तो खालिक हमसे क्या चाहता है। अगर वो खालिक ये चाहता है तो खालिक फिर कैसा है। ये सिफात जब हमने समझ ली, एंड देन वी गो टू, फिर आखिरी स्टेज पे हम फिर वही की तरफ जाएंगे कि उसने भी बात की है ना हमसे। यानी एक है जी। जो रैशनली हमने समझा है खालिक को, और एक है जो उसने बताया है। फिर उसमें कई चीज़ें हमारी करेक्ट हो जाएंगी, कई चीज़ें हमारी मॉडिफाई हो जाएंगी। यानी वो हम फिर ये देखें कि वो जो चीज़ें हमने गलत डिराइव की और उसने ठीक आके कर दी, वो क्या हुआ। मिसाल के तौर पर आप इस दुनिया को जिस वक्त स्टडी करते हैं, अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाएं कि वही की रहनुमाई है या नहीं है। इस दुनिया को स्टडी करते हैं जब, तो एक सवाल पैदा हो जाना चाहिए कि खालिक ए मॉरल है, असल में ए मॉरल है, उसका कोई ताल्लुक भी असल में अखलाकियात से नहीं है। ही डज नॉट केयर। मार दो तुम किसी को, कर दो कत्ल, झूठे इल्ज़ाम लगा दो, चल रहा है मामला। यानी ये तो आकर फिर मज़हब ने एक्सप्लेन किया है ना। ये वो चीज़ें जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, इससे हम कुछ चीज़ें अपने बारे में भी डिराइव करेंगे। मैं पिछले दिनों किसी को बता रहा था कि कभी भी एक्सपीरियंस से खुदा को समझने की कोशिश ना करें। इसलिए क्योंकि एक्सपीरियंस आपका जो है वो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है। जो मेरा इस वक्त क्लासरूम में बैठे हुए एक्सपीरियंस हो रहा है वो आपका नहीं हो रहा। जो अली ने अभी बात की है, ये ज़रूरी नहीं कि सबका हो रहा हो। ठीक है जी, इट्स अ वेरी पर्सनल, इसमें सब्जेक्टिविटी शामिल है, आपकी इमोशनल जो इस वक्त की सिचुएशन है वो शामिल है, आपने क्या चीज़ समझ रहे हैं, आप किस तरह से देख रहे हैं कि क्या टाइम यूटिलाइज हो रहा है, ज़ाया हो रहा है, इस सब कुछ में आपका एक्सपीरियंस इन्वॉल्व होगा। दिस इज़ अ सब्जेक्टिव पर्सनल एक्सपीरियंस। और हमें जिस चीज़ से खुदा को समझना है वो सिर्फ डेटा होना चाहिए। ये है, हमारे अंदर ये एबिलिटीज़ हैं। हम इस डेटा को देखकर, ये नहीं कि मेरा एक्सपीरियंस क्या है, ये डेटा देने वाला, ये पोटेंशियल देने वाला जो है, ये कुछ चाहता होगा ना, किसी वजह से दिया होगा। पहले इसको डिटर्मिन कर लेंगे, डेटा है, डेटा से निकालना है। ठीक है जी, यानी जी। इंफॉर्मेशन है।
एक है मेरे साथ होने वाला वाकया, ठीक है। मैं अलग-अलग करेंगे दोनों। इस ये वाकया जो है, इससे जैसे ही मैं इसको समझने लगूंगा, तो मैं असल में वो बन जाऊंगा जिसको आप कहते हैं ना कि अला हरफिन, यानी फिर मैं ये कहूंगा कि मेरे एक्सपीरियंसेस अच्छे होने चाहिए। अगर खुदा है तो मेरे साथ वो अच्छा मामला करे, ठीक है जी। यानी अच्छा मामला भी मैं अपनी नजर से देखूंगा, वो मेरी मेरी दुआएं पूरी करे, अभी पूरी करे, और कह रहे गॉड गिव मी पेशेंस एंड गिव इट टू मी राइट नाउ, वो वाला एस्पेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। दिस इज द सीक्वेंस, इसके साथ चलें इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है काफी अच्छा एक्सपीरियंस होगा जी, अच्छा। इंशाल्लाह। थैंक यू जी। जी, अब तर आप अनम्यूट कर लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी। जी, मैंने कुछ यूँ लिखा है कि वैसे तो ये जब इस पे सोचते हैं तो मतलब सोचना ख़त्म हो जाता है, लेकिन मैंने कुछ कोशिश की है। यानी कि ऐसा मालूम होता है कि इल्म हासिल करने की सलाहियत और ज़बान यानी इब्लाग़ की सलाहियत का आपस में बहुत अहम ताल्लुक है। बहुत इंसान की तख्लीक, इंसान में इल्म की सलाहियत और ज़बान की सलाहियत बाकायदा खालिक के प्लान का एक हिस्सा मालूम होता है। खालिक की कायनात का मुशाहदा करें, यानी कि अल्लाह हमसे चाहता है कि यानी कि खालिक क्या चाह रहा है हमसे। खालिक की कायनात का मुशाहदा करें और इसको खालिक से मुतल्लिक करें। सबसे पहले खालिक की हमसे तवक्का है कि हम अपने आप से गुफ्तगू और ख्यालात और आइडियाज़ की बुनियाद खालिक की फितरी इखलाकियात पर रखें। और ऐसा मालूम होता है कि खालिक की इंसान से तवक्का है कि वो ज़बान की सलाहियत से हासिल शुदा हिदायत और इल्म नाफ़े को आने वाले और अपने इर्द गिर्द दूसरे इंसानों तक पहुँचाए। खालिक की इंसान से तवक्का है कि वो ज़बान की सलाहियत पर गौर करे और सोचे कि अगर ये सलाहियत इंसान में ना होती तो इंसानियत का क्या हाल होता, इंसान की इल्म की सलाहियत का क्या होता। सवाल है, यानी कि सोचे, इस पर गौर करें। हमारी दुनिया कैसी होती, हमारे मसाइल क्या होते, हमारी साइंसी तरक्की का क्या हाल होता, वगैरह वगैरह। खालिक की इंसान से ये तवक्का है कि वो ज़बान की सलाहियत पर गौर के बाद खालिक की रहमत को महसूस करे और उसका शुक्रगुजार हो। और आखिर में जो है मैं कुरान की तरफ ही जाऊँगा, सूरह रहमान की तरफ, जो कि हाँ। मतलब बहुत ही आला किस्म की जो उसकी पहली 2-3 आयतें हैं, वो मतलब मेरे ख्याल से वो ही है जो अल्लाह चाहता है। थोड़ी देर के लिए इमेजिन कीजिएगा, ये इमेजिन कीजिएगा सिर्फ, ये मैं जो आपसे अर्ज करने हूँ, यानी इंसान की 50 साल जिंदगी, एक तो ये हम ये इमेजिन ही नहीं कर पाते कि वो कम्युनिकेशन के बगैर वो 50 साल गुजारेगा कैसे, 100 साल चले, 100 साल की जिंदगी बिल्कुल सर, बिल्कुल, बिल्कुल। इमेजिन ही नहीं कर पा सकते हम कि वो गुजारेगा कैसे। नंबर दो, उसने जो कुछ भी डेवलप किया है, जो कुछ भी डेवलप किया है उन 100 बरसों में, वो जीरो हो जाएगा उसके मरने के बाद, इसलिए क्योंकि किसी को पता बिल्कुल ही नहीं चलेगा। एग्जैक्टली। यानी वी और वुड सर बी ये गोइंग इन द सोचे, सेम सर्कल। बंदा ये सोचे ही नहीं कि इसमें मेरे ख्याल से जो जुबान की शायरी इसकी चीज ये सोचे कि अगर ये ना हो तो क्या हो, तो मैं तो पागल हो रहा था। आप यकीन करें राइट, राइट। कि कि आपकी जितनी भी साइंसी तरक्की है ना, या जितनी भी इल्मी सफर है अभी तक, मैं कहता हूँ कि ये इतना स्लो होता ना, इतना स्लो होता नहीं, सफर कि होता आप ही यकीन शायद नहीं नहीं कर जी, सकते। वो सफर हाँ, सिर्फ शायद ना होता। इंडिविजुअल का होता। हाँ, वो यानी कि अगर हम उसको निकाल दें उस एस्पेक्ट को, जैसे कि अली भाई भी कह रहे थे कि हम इसको न्यूट्रल को होकर सोचें और राइट, देखें, तो फिर क्या होगा। यानी कि राइट। आप इस सफर को इमेजिन ही नहीं कर सकते, मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल होता है। ये अब मैं हम आपको जिस बताऊं, दौर में रह रहे हैं। इसकी जी। इसकी इसकी हल्की सी मिसाल आपको समझने के लिए इस तरह इमेजिन करें कि आपके घर में मेरे बेटे ने एक ज़माने में कुत्तों की ट्रेनिंग का बड़ा वो काम किया करता था। तो एवरी डॉग दैट ट्रेन्स, उसके बाद वो ठीक हो जाता है सब कुछ। अब वो बूढ़ा हो गया और फौत हो गया, उसके बच्चे को दोबारा से ट्रेनिंग करना पड़ेगा आपको।
वो कुत्ता कुछ नहीं सिखा सकता उसे। उसको सिर्फ इंस्टिंक्ट सिखा सकता है कि इस तरह भौंकने का क्या मतलब है, और इस तरह किस वक्त जान जी बचाने के लिए भागना है, और किस वक्त ऑल दीज थिंग्स, ये इंस्टिंक्ट्स जी हैं। लेकिन मिसाल के तौर जी। पर मैं उससे कहूँ सिट, तो अब उसके देखा देखी वो हो सकता है दूसरा भी बैठने लग पड़े, लेकिन कहना मुझे ही पड़ेगा। और सर ये देखेंगे अभी जो हम बात कर रहे हैं, मैं आपकी आवाज़ सुन पा रहा हूँ और आपकी राइट, मतलब शक्ल भी देख पा रहा हूँ। मैंने अपनी शक्ल ब्लॉक की हुई है, ठीक राइट, है ना? तो ये कैसे मुमकिन है? सोचें ज़रा, अगर ज़बान ना होती, कम्युनिकेशन क्वाइट ना राइट, होती, ये मैं मेरे ख्याल से ये तो मुझे तो इम्पॉसिबल ही लग रहा है अभी तक। एब्सोल्युटली जी। ये तो बहुत आगे की बात है जी। आप सुबह से लेके जी। शाम तक की जो जिंदगी है उसमें एक एक चीज को देखें तो आपको लगेगा कि ये नहीं हो सकती थी, हो ही नहीं मैं सकती थी। मेरा जो है बैकग्राउंड बेसिकली आईटी से है, मतलब कंप्यूटर साइंस है, तो उसके अंदर पढ़ाते हैं ना लैंग्वेजेस का जो होता है कि भाई ये मतलब ये अपर लेवल की लैंग्वेज है, राइट, ये लोअर लेवल की लैंग्वेज है। तो अगर आप बिल्कुल जो हम बोल रहे हैं इस वक्त, अगर उर्दू बोल रहे हैं या इंग्लिश बोल रहे हैं या कुछ भी बोल रहे हैं, तो ये तो एक बेसिकली मतलब हायर लैंग्वेज है ना। इसके नीचे जो लैंग्वेज है आप उसका सफर तो करें जरा। बिल्कुल, बिल्कुल, क्वाइट राइट जी। तो मतलब ये कि ये मतलब ये आप सोचते हैं तो बंदा मतलब मैं तो अभी मैंने आज सोच रहा था इसी टॉपिक के ऊपर मैं लेकर थोड़ा जब सोच रहा था, तो मैं तो मेरे मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मतलब था ही नहीं। एब्सोल्युटली जी। विदाउट दिस वी जी प्रॉब्ली आर नथिंग। जी बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा था। अपनी अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज लेके अपने अपने घर बैठे होंगे फिर। बस हाँ, तो कुछ भी नहीं है, मतलब आप कुछ कर ही नहीं सकते, आप ट्रांसफर ही नहीं कर राइट, सकते। यानी कि अगर आप नीचे जाके देखें तो ये सारी इमोशंस ही है ना, बेसिकली तो राइट, इमोशंस है, ठीक है ना? तो बिल्कुल। जब इमोशंस ही हैं तो फिर इमोशंस को अब मतलब मुझे जब मैंने एंड में जब देखा, फिर जो मुझे पता नहीं लकीली इसी हफ्ते मैंने डॉक्टर इसरार की एक छोटा सा क्लिप सुना, सुहेल रहमान के ऊपर। तो 5-6 मिनट का क्लिप तो उन्होंने ये 4 आयतें जो पढ़ी हैं, तो मैं तो मतलब मैंने कहा यार ये मतलब क्या है ये मतलब जैसे अली भाई ने बात की है न्यूट्रल होने की, लेकिन वो बहुत जेनेरिक बात की जा रही है, जो और लोग न्यूट्रल बात की जा रही है कुरान मजीद के अंदर। हम्म, तकलीफ की बात हो रही है ना, वैसे तो न्यूट्रल ही होगी ना, मतलब उसमें ये तो नहीं बता रहा कि मैं अल्लाह हूँ, नहीं कि मैं हूँ, ये नहीं है। एक बिल्कुल न्यूट्रल बेस पे बात की जा रही है। पहले इल्म की बात की, फिर इंसान की बात की कि मैंने अल्लाह को मैंने मैंने इंसान को बनाया, और फिर जो है यह है बयान की बात की, हम्म, और फिर जो सारी नेमतों को गिनवाया। अब उसमें भी बड़ा कुछ होगा जो कि मैंने कोशिश की उसमें जो कुछ निकालने की, निकला मुझे कुछ नहीं मिला इतना खास, लेकिन यह है कि उसमें कुछ ना कुछ जरूर है अगर उसको बहुत गौर से पढ़ा जाए और कुछ वो किया जाए बिल्कुल। तो। नहीं, इंशाल्लाह उस पे भी बस बात करेंगे जी, ज़रूर इंशाल्लाह। उसको ज़रूर इस पर्सपेक्टिव में देखने की कोशिश कीजिएगा कि वो सूरह कमर के बाद वाली आयत है, और सूरह कमर की जो बार बार रिपीट होने वाली बात है ना, बार बार रिपीट होने वाली, वो बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, और उससे रिलेट करके देखें इस आयत का क्या मतलब है। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमाहुल बयान। इसकी क्या वजह है? यानी वो कौन सी उसको। आयत? जी, सूरह कमर की कौन सी आखिरी आयत? जी, नहीं, नहीं, सूरह कमर कमर में जो ऑफ़न रिपीट, जैसे इसमें है ना फ़बिअय्यि आलाइ अच्छा अच्छा, रब्बिकुमा जी हाँ, ठीक तुकज़्ज़िबान, है, हाँ, सही सही उधर सही भी एक आयत है ना जो रिपीट हो रही है। सही सही। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर। जी 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 ठीक है? हमने कुरान मजीद को पूरी तरह से एप्रोप्रिएट बना दिया है इस याद दहानी के लिए, लिज़्ज़िक्र। ये याद दहानी जी क्या है? वो सूरह कमर का मौज़ू है। ठीक है जी, वो आप जी, इस बहुत लिहाज़ से खूब। देखेंगे। अब तो देखें। आज ही देखिए, आपने आपने इसका जिक्र किया है, तो एक और जगह तो कुरान मजीद में इन्हीं के नहीं, अभी बाकायदा हम जो इसको ये इसके मतलब अंदर जी थोड़ा फंसे, आगे चले। कुरान की बात हो जी जाएगी तो फिर चलें तो जी, हम आगे चलें चलते जाएंगे जी। तो चलें जी, जज़ाकल्लाह, इंशाल्लाह बहुत इस पे शुक्रिया। करेंगे जी बात। जरूर, थैंक यू वेरी मच जी। जज़ाकल्लाह। जी खलील, लास्ट टाइम आपका हाथ रेस था लेकिन हाँ रह जी गया था मौका, तो हाँ प्लीज जी गो अहेड। चलो, बहुत शुक्रिया सर। अच्छा सर, मैं ये दो पॉइंट्स पे बात करना चाह रहा हूँ। एक तो ये कम्युनिकेशन, और दूसरा ये जो इंस्टिंक्ट कंट्रोल का पॉइंट आपने आज इसमें ऐड किया स्लाइड में। तो एक छोटा सा वाकया है जिससे मैंने ये चीज़ समझी है, और उसको मतलब उससे समझ आई कि अल्लाह ताला क्या एक्सपेक्ट करते हैं, शायद गाइड कीजिएगा अभी। मेरी बेटी ने, छोटी ने, पिछले दिनों अपनी मदर के अमेज़न के अकाउंट से, वो जब भी उसको मौका मिलता है तो कोई टॉय छोटा-मोटा ऑर्डर करती रहती है। स्टोर पे जो है तो टॉयज़ इकट्ठे करती रहती है।
तो मैं उसको मना करता रहता हूँ कि बेटा पहले ही हैं तुम्हारे पास टॉयज इतने, तो उसने खैर नहीं मानी बात और ऑर्डर कर दी अपनी अ, मामा के अकाउंट से। तो मैं नहीं था घर में, तो आया तो उसकी मामा ने कहा कि अब पापा डांटेंगे तुम्हें, तो जाओ उनसे सॉरी करो। मुझे ये आवाज़ आ रही थी, मैं नीचे बैठा हुआ था बेसमेंट में। तो खैर वो आई मेरे पास और उसने आके कुछ बोला नहीं, सिर्फ खामोश खड़ी हो गई। और मैंने जब उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों से मतलब आंसू टपक रहे थे दो। तो मुझे चूंकि आवाज़ आ गई थी वाइफ की, तो मैं समझ तो गया कि ये क्या कहना चाह रही है, मतलब सॉरी करना चाह रही है। तो मैंने उसको अपने साथ गले से लगाया और मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, मुझे समझ आ गई तुम क्या कह रही हो, लेकिन तो आगे से फिर उसने एक्सप्लेन किया कि पापा मैं मुझे खुद नहीं समझ आ रही, मैं जब कोई अच्छा टॉय देखती हूँ तो ले लेती हूँ, और उसके बाद फिर एक दो दिन में मैं बोर हो जाती हूँ, फिर मुझे लगता है कि और नया लेना चाहिए मुझे, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि मैं बोर क्यों हो जाती हूँ। तो आप यकीन कीजिए कि इस वाक़ये ने मुझे इतना ज़बरदस्त सबक मुझे अपने लिए ही मिल गया कि देखिए दुनिया में शायद अल्लाह ताला ये चाह रहे हैं इस तरह की बातों से, यानी ये जो एहसास होता है हमें बोर्डम का एक चीज़ हमें, मैं कहता हूँ उस वक़्त तक अच्छी लगती है जब तक वो दूर होती है। इस दुनिया में हर चीज़ आइडियल लगती है जब तक वो दूर होती है। जूँ ही हम वो ले लेते हैं तो पता चलता है ये आइडियल नहीं थी। तो इससे शायद अल्लाह ताला ये हमें समझाना चाह रहे हैं कि इसे समझो कि आइडियल दुनिया इधर नहीं है, वो भी आगे आनी है। और दूसरी बात जो उसने सॉरी वाली उसने कहा नहीं लेकिन मैं समझ गया। तो इससे मुझे ये सबक मिला शायद कि हमें बाज़ औक़ात अल्लाह ताला ये समझाना चाहते हैं कि लफ्ज़ों की भी तुम्हें शायद ज़रूरत नहीं इतनी। मैं तुम्हारे हम्म। दिलों को जानता हूँ, तुम जब अंदर से एहसास निकलता है, तो बस वो आंसू वाह ही काफ़ी हैं तुम्हारे मेरी मेरी बारगाह वाह के लिए। बहुत शुक्रिया वाह, सर। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। जी अदनान आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर पहले तो आपसे गुज़ारिश है कि आप जिस तरह से हमें लेके चल रहे हैं, तो आप कम से कम अगर वो रेफरेंसेस के अंदर कंटिन्यू होते हैं ना कुरान के, तो वो मेरे जैसे सिंपल माइंड को इसको फॉलो करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम कर देता है, क्योंकि फिर हम दोबारा कुरान में चले जाते हैं। राइट तो राइट, आई अंडरस्टैंड। तो वो ज़रा अगर थोड़ा सा हम कर सकें। अच्छा, सर हाउ और बाकी ऑडियंस के लिए भी मैंने किस तरह इसको देखने की कोशिश की। सो अगर मैं बिल्कुल एक न्यूट्रल जगह पर बैठा हूँ और खालिक की तलाश कर रहा हूँ, तो बुनियादी तौर पर मैं तो अपने या अपने सामने मौजूद बच्चे की तरफ देखता हूँ कम्युनिकेशन के लिए। तो पहली चीज़ सामने आती है कि वो बच्चा जो है, वो एक आवाज़ निकालता है जिसको जो क्राई की है आवाज़, जो कि मुझे ये इंडिकेशन पहली तो देती है कि ये कम्युनिकेट कर रहा है फॉर हिज़ और हर बेसिक इंस्टिंक्ट ऑफ सर्वाइवल। राइट। तो कम्युनिकेशन के पीछे ये पहला पॉइंट आता है कि शायद ये कम्युनिकेशन इसलिए दी गई है कि हमारी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जो है वो पूरी हो सके, जो बका की सलाहियत है वो हो सके। अच्छा, इसके पैरेलल जब मैं देखता हूँ तो फिर बका तो बाकी भी जानदारों की मौजूद है, वो भी बका के फ़लसफ़े पर दुनिया में हैं। तो मुझे डिटेल स्टडी तो नहीं है मेरे पास हर जानवर की, मगर फिर मुझे समझ में आती है कि अम, वहाँ पर बका जो है वो नेचुरली किसी तरह से हो रही है। मतलब दे डोंट कॉल एक अदर एनिमल, ठीक है, कुछ हर्ड्स में होते हैं मगर वो दूसरे को नहीं बुलाते अपनी मदद के लिए। तो इस पॉइंट को जब मैं बहुत एम्फसाइज़ करता हूँ, तो मुझे ये समझ में आती है और मैं खालिक को देख रहा हूँ कि वो मैं अगर कोई खालिक मौजूद है, तो वो इस जगह पर तवक्को क्या है? तवक्को उसका कम्युनिकेट करके बुलाना है, या ये तवक्को जिसको वो कम्युनिकेट हो रहा है, उससे है? हम्म। तो अगर उसके इर्द-गिर्द कोई माँ है या बाप है या कोई भी इंसान है किसी भी फ़ॉर्म में, तो ये यहाँ पर बर्डन चला जाता है उस पर जिस पर वो जिसकी तरफ वो कम्युनिकेशन हो रही राइट है। राइट। अब यहाँ से वंडरफुल। मैं उठाता हूँ ये बात को, तो आपके सारे पॉइंट्स दायरे बर दायरे पर ये चीज़ें कंप्लीट होती जाती हैं। मतलब अगर अगर मैं हर की मिसाल देने लगूँ तो शायद आधे घंटे से ऊपर चला जाए, लेकिन इन शॉर्ट अगर मैं रखूँ तो यही चीज़ फिर जब लैंग्वेज आती है तो एहसासात शामिल होते हैं। आपको राइट। समझ में आती है कि अब एहसास एक पहले भूख की चीज़ कम्युनिकेट की। अच्छा, अब मैंने मेरे मेरे में कुछ एहसास पैदा हो रहे हैं, तो ये एक मज़ीद कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज और कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट है। तो मैं वो कैसे कर पा रहा हूँ?
यहाँ पर भी बर्डन ऑफ प्रूफ आ रहा है जिस पर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट हो रही है कि मैं उस पर कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। हुँ, आप देखें कि एक माँ या बाप को जब ये आवाज़ आई तो दे हैव अ चॉइस। दे कैन कीप सिटिंग ऑन देयर सोफा या जहाँ पर भी वो बैठे हुए हैं, लेकिन वो वहाँ से उठते हैं और कुछ करते हैं। इसी तरह अगर इस कम्युनिकेशन को आंसर करने के लिए आपने कोई रिस्क कमाना है, तो क्या आपने वो एक्शन लिया है? आपने एक एहसास को कम्युनिकेट करने के लिए या समझने के लिए अगर लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत है, तो क्या आपने वो सीखी है? और अगर इस लैडर को क्योंकि अगर अगेन टाइम कम है, मैं शॉर्ट कर रहा हूँ और आगे चलता हूँ। पहली तो बात ये कि ये तो बात मुझे समझ पहले स्टेप पर ही आ जाएगी कि ये भी मैं समझ रहा हूँ कि खालिक एक्चुअली क्या चाहेगा, वो मुझे खालिक ही आकर बताएगा। ये तो भी वो हुँ, लैडर है जो मैं क्लाइंब कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पर मैं आपके एक सेशन में आया हूँ, मैं सर्टेनली नहीं कह सकता कि आपकी या ऑडियंस की क्या ख़्वाहिश है। जब तक जो आप नहीं कहीं बताएँगे मुझे नहीं पता, वो सर्टेनिटी से नहीं कह सकता। हुँ, मैं अभी भी जो कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये पॉसिबिलिटी है कि आप मुझे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसी पॉसिबिलिटी की लैडर पर जो कि मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया कि खालिक मौजूद है, तो खालिक ये तसव्वुर ये चाह रहा होगा मुझसे कि मैं इस रिस्पॉन्स को दूँ और इसमें अपनी कोशिश जारी रखूँ, जब तक कि वो अपनी कम्युनिकेशन मुझ तक ना पहुँचा दे। क्योंकि हुँ, फिर जब वो अपनी कम्युनिकेशन मुझ तक पहुँचाएगा, तो मुझे कहीं नज़दीक होना चाहिए इस कम्युनिकेशन प्रोसेस में ताकि मैं उसकी कम्युनिकेशन को भी समझ सकूँ। राइट, राइट। ठीक है? बिल्कुल ठीक है। एंड द लास्ट पार्ट इज़ बिकॉज़ मेरी ऑब्जर्वेशन से मुझे पता है कि दिस लाइफ इज़ गोइंग टू एंड। द लास्ट पार्ट इज़ व्हिच एक्चुअली अ क्वेश्चन मार्क फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर मी स्पेशली, कि अगर मैं इस कम्युनिकेशन लैडर में प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट में ना रहा और ये डोर शट हो गया, तो वो जो कम्युनिकेटर एक बॉस की सूरत में कहीं बैठ फॉर एग्ज़ाम्पल यही मैं इमेजिन कर सकता हूँ बैठा हुआ है और मैं उस दरवाज़ा खोलता हूँ, कहता है कि यू डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट विद मी, यू डिड हुँ, नथिंग इन दिस प्रोसेस टू कम्यू तो मेरे दरवाज़े तुम्हारे लिए खुले नहीं हुए हैं। ये डोर जब बिल्कुल शट सही। हो जाता है, तो वो ये कह हुँ, सकता है कि तुमने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तुम्हें एक सलाहियत दी थी, तुमने तो कुछ भी नहीं किया, तो मैं क्यों तुम्हें एंटरटेन करूँगा इस दुनिया अब ये जो राइट। आफ्टर लाइफ है, मैं क्यों एंटरटेन करूँ? सो ये एक शॉर्ट सी प्रोसेस है जिसको मैंने देखा था कि हाउ कम्युनिकेशन इज़ इम्पोर्टेंट और मुझे ये किस तरह लीड करती है खालिक की तरफ। बहुत अच्छे जी। थैंक यू वेरी मच जी अदनान, थैंक यू वेरी मच फॉर योर वेरी नाइस वर्ड जी। आयशा आप अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलामुअलैकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैंने ये लिखा है कि अल्लाह ताला ने जो हमें ज़ुबान सीखने और गुफ्तगू करने की सलाहियत दी है, मैं अल्लाह ताला हमसे चाहता ये है कि हम अपनी सोच और जज़्बात को अच्छी तरह समझें और उन्हें बयान कर सकें। और अगर उनमें कोई ख़राबी है तो उसकी इस्लाह करें और अपनी सोच की गहराई में भी खुदा ख़ौफ़ी इख्तियार करें। और दूसरे के साथ जो ताल्लुक़ है उसको मज़बूत करें, यानी अपने ख़यालात और जज़्बात शेयर करके। यानी दूसरे की बात समझें भी और उसकी फीलिंग समझें, उसको एप्रिशिएट करें। दूसरा जो ठीक। है वो ये है कि हम ये चाहते हैं कि अपने ताल्लुकात जो हैं वो सिर्फ़ फैमिली की सतह तक ही ना रखे जाएँ बल्कि मुआशरे में भी लोगों से ताल्लुकात बनाए जाएँ। यानी आपस में ट्रस्ट बिल्डिंग हो, अपने कॉन्फ्लिक्ट रिज़ॉल्व कर सकें। इरफान आप अनम्यूट कर लीजिए। जी, मैं टाइम का लिहाज़ रखते हुए आई विल कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल क्योंकि वो जी, काफ़ी बारी सारी बातें जो हैं वो रिपीट भी हो चुकी हैं। तो आई विल कीप इट कनेक्ट विद माय लास्ट ऑब्जर्वेशन जो मैंने पिछले सेशन में ज़िक्र किया था कि मैं जब खुदा को जानने के लिए अपने आप को देखता हूँ कि मैं बाकी मखलूक़ात से सुपीरियर हूँ और थॉट प्रोसेस की वज़ह से, तो उसके बाद मेरा जो पहला दिल चाहता है वो करने के बाद वो शुक्र अदा करने का चाहता है। वो शुक्र अदा मैं कैसे करूँगा? वो इसी लैंग्वेज या कम्युनिकेशन से करूँगा। तो मेरे ख़्याल से ये तमाम बातें जो साथियों ने कही हैं, वो अपनी जगह एप्लीकेबल हैं। उसके ऊपर मैं ये देखता हूँ कि मुझे ज़रूरत है अपने ख़ालिक को जानने के बाद उसका शुक्र अदा करने, कि उसने हुँ, मुझे बाकियों से superior रखा है।
और वो शुक्र अदा करने के लिए मेरे पास जो मीडियम है वो एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मीडियम इज़ लैंग्वेज और इज़ कम्युनिकेशन। तो एक शुक्र है और दूसरा फिर उसके बाद उससे राब्ते के लिए मैं दुआएँ करता हूँ। तो आई कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, शुक्र और दुआ, ये 2 चीज़ें। ब्यूटीफुल जी, वंडरफुल, क्या बात है। जज़ाकल्लाह। राफिया कुछ कहना चाह रही थी, तो राफिया प्लीज गो अहेड एंड देन वी विल कॉल इट अ डे इंशाल्लाह। उसके बाद अगर कोई हैंड्स रेज्ड हैं तो उनको हमने नोट कर लिया, हम उनको नेक्स्ट टाइम प्रायोरिटी दे देंगे। अली, अगर टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, आई कैन डू इट नेक्स्ट टाइम। आप मोहित साहब से पूछ लीजिए, आई डोंट वांट टू कीप एनीवन वेटिंग। अगर आप चाहते हैं तो मैं कुछ थोड़ा बहुत कह देती हूँ। जी जी जरूर, अभी भी कह लें, नेक्स्ट टाइम भी कह लीजिएगा। आई थिंक हम इतना तो हक जता सकते हैं मोहित साहब को, हम 2 मिनट और रोक लेते हैं मसलन। मैं ये लिखा है कि language enables us to express our feelings and our emotions and to communicate with one another, and we are expected to do it in a kind and helpful manner. It helps to strengthen our relationship with one another on a personal level and with communities. We can share our knowledge with each other and help each other in different fields. We can learn from others who are more experienced than us, like in medical knowledge and in other fields like engineering, from other advanced countries. We can do problem solving by sharing our knowledge, and by language we can share different ideologies, discuss religion, and discuss our cultures. Mm. It can also lead us to do creative writing, fiction or non-fiction. Now, I'm not very sure, Moisa, whether I understood the topic, because other people have expressed it in different ways, but this is what I understood. जी। And if I'm wrong, kindly correct me. ये जो है ना, ये जो हमने लिखी हुई हैं यहाँ पे चीज़ें, कि इस लैंग्वेज की कम्युनिकेशन की एबिलिटी से हम एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स एंड इमोशंस कर सकते हैं, वी कैन बिल्ड सोशल बॉन्ड्स एंड रिलेशनशिप्स, नॉलेज शेयरिंग होती है, मेटा कम्युनिकेशन और सेल्फ रिफ्लेक्शन है, एंड सो ऑन। आपने असल में ये देखना है कि ये जो एबिलिटी है लैंग्वेज की, जिसके ज़रिए से हम ये सब कुछ कर सकते हैं, यू डोंट हैव टू गो इनटू ईच वन ऑफ दीज, गेट अ बेसिक आइडिया ऑफ ऑल दिस, ठीक है, एंड देन थिंक। और ये अब यू कैन ऑल्सो शेयर नेक्स्ट टाइम। हम इंशाल्लाह, मैं जब इसका समराइज कर दूंगा तो पहले आप शेयर कर लीजिएगा। जो चीज़ आपने सोचनी है वो ये कि जिसने मुझे ये एबिलिटी दी है कि मैं ये कर सकता हूँ, और जाहिर है कि ये एबिलिटी सिर्फ ये नहीं दी कि मैं ये कर सकता हूँ, कि मैं ये अपनी थॉट्स को और अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकता हूँ, बल्कि दूसरे की एक्सप्रेशंस को समझ भी सकता हूँ। ये जो अभी अदनान ने बात की है, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। यानी मैं सिर्फ ये नहीं एबिलिटी रखता कि मैं ये बताऊं कि आई एम वेरी सैड, मैं ये भी एबिलिटी रखता हूं कि जब आप मुझसे ये कहें कि आई एम वेरी सैड, तो मैं समझ सकता हूं, मैं समझ सकता हूं कि इस वक्त सैडनेस का क्या मतलब है, मैं समझ सकता हूं कि व्हेन यू आर सैड व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ दोज हु आर अराउंड यू, दिस इज व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड। तो ये जब हमें एबिलिटी मिली हुई है, तो व्हाट इज इट दैट द बेस्टोअर ऑफ दीज एबिलिटीज वांट फ्रॉम अस, ये हमने अभी बात करनी है। ये तो आपने जो बताया कि ये हम ये कर सकते हैं और ये कर सकते हैं, ये तो हम कर सकते हैं, लेकिन व्हाट इज ये सब कुछ करने की सलाहियत मेरे अंदर है। जो अभी अदनान ने जो एक बात की थी, मैं उसको एक चीज़ को ठीक कर दूं जी, इंस्टिंक्ट को कम्युनिकेट करने की एबिलिटी हर जानदार में है, ठीक है। यानी उसको अपनी जान बचाने के लिए आवाज़ निकालेगा वो, और दूसरे उसके जो स्पीशीज़ वाले हैं वो समझ लेंगे और उसकी मदद कर सकते हैं तो करेंगे, या खुद अपने आप को बचाएंगे, ठीक है। यानी व्हेन अ स्मॉल चिक जो है, उसकी जो माँ है ना, जिस वक्त आप देखेंगे कि ऊपर अगर चील आ जाए तो वो उसको एक ख़ास आवाज़ निकालती है, जिसके नतीजे में वो सारे बच्चे जो हैं भाग के उसके पर के नीचे आ जाते हैं। तो अपनी जान बचाने के लिए वो ये कर सकते हैं। दिस इज ये इंस्टिंक्टिव एबिलिटीज तो सब जानदारों में है, लेकिन यही बिल्लियां करती हैं। एक कैट जो है वो इस तरह की आवाज़ निकालेगी, सारी कैट्स जो है वो एकदम मुतनब्बे हो जाएंगी कि कुछ मसला हो रहा है एनवायरमेंट में। लेकिन हम लोग इससे आगे बढ़ के कर सकते हैं। हम लोग सिर्फ ये नहीं कि जान को खतरा है, हम लोग यही बता सकते हैं कि यार आज मैं कुछ थोड़ा सा, आई एम लिटिल एंक्शियस, आई एम लिटिल सैड, आई एम लिटिल स्ट्रेस्ड, आई एम लिटिल टेंस्ड,
ये सारी इमोशंस, और दूसरा सुनने वाला जो है उसके अंदर ये एबिलिटी को ये समझ भी सकता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है अदनान ने। ये एबिलिटी है जो जो क्रिएटर ने मुझे दे दी है। अब मेरे से क्या तवक्को है, ये सोचना है। ये आप इस पे भी सोचिएगा। और नेक्स्ट टाइम जो हमारा टॉपिक है जी, विच इज़ इन सेशन नंबर 29, मैं उसको लिख भी दूँगा। आई थिंक इट इज़ सेशन नंबर 29। वो तख़य्युल है अपने इनके लिए, खलील के लिए, कि वो नेक्स्ट टाइम हमारा टॉपिक जो है वो इमेजिनेशन है, तख़य्युल है। ठीक है जी, अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे आप सबको। मैं नोट कर लेता हूँ जी। ताहिरा का सवाल हमारे पास रह गया था। ताहिरा, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर टाइम पे जॉइन कर लें तो यू विल गेट द फर्स्ट टाइम जी। थैंक यू वेरी मच जी, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।